Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर अक्टूबर मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने प्रेजेंट किया भी नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स 2021-22 के लिए कितने रेसिपिडेंट्स को ये सम्मानित किया गया इस अवार्ड से एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। तो बताइए ज़रा कितने लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया था, कितने रेसिपिटेंट थे इसके? 52 रेसिपिटेंट थे, राइट। एंड यहाँ पर किन के द्वारा? बाय द्रौपदी मुर्मू मैम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे इनको सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाता है एज ऑफ सितंबर हु विल रिसीव शानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी रामानुजन प्राइज 2023। जो शास्त्र रामानुजन प्राइज है, इससे किनको सम्मानित किया जाएगा भी ये पूछा जा रहा है। तो वो है रुइक्जियांग जेंग, ये चाइना से बिलोंग करते हैं, और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, उसके लिए इनको यहाँ पे शास्त्र रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? ये शास्त्रा यूनिवर्सिटी में, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। एंड ये शास्त्रा यूनिवर्सिटी इनिशिएट इंस्टीट्यूट की गई थी 2005 में, और तभी से इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इवन यहाँ पे $10,000 का एक कैश प्राइज भी इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज हैव वन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023 बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से किनको सम्मानित किया गया, ये पूछा गया है। तो वो रहेंगी कैटलिन कैरिको, जो कि हंगरी से बिलोंग करती हैं, एंड्रू वीसमैन, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया अभी नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से, मार्क करके चलेंगे। एंड इन्होंने एक mRNA वैक्सीन की डेवलपमेंट की थी फॉर कोविड-19, राइट। कोविड-19 के लिए वैक्सीन mRNA वैक्सीन इन्होंने डेवलप की थी, एंड इसी के लिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी से सम्मानित किया जाएगा। और याद रखेंगे कैटलिन कैरिको, जो ये हंगरी से बिलोंग करती हैं, ये 13th वीमेन बनी जिनको सम्मानित किया जाएगा नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी से। नेक्स्ट, नेम द इंडियन पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन। तो वो है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ये है काफ़ी फेमस ऑथर हैं, एक फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, एंड ये चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की, राइट। एंड इनको याद रखेंगे, ये वो पहली वीमेन बनी है जिनको ऑनर किया गया ग्लोबल इंडिया अवार्ड से बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन। एंड दोनों कंट्रीज के बीच में जो उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर से जो ग्रोथ लाई है, जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, उसके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। एंड इस अवार्ड के साथ साथ एक $50,000 का अमाउंट भी इनकी मनपसंद जो भी चैरिटी होगी उसको यहाँ पे डोनेट किया जाएगा। नेक्स्ट, which of the following personalities has have been recently awarded with 2023 Nobel Prize in Physics by the Royal Swedish Academy of Science? तो
कौन है वो जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया? तो एनी व्हीलर फ्रांस से, फ्रेंच क्रॉसर हंगरी से एंड पियरी अगोस्टिनी फ्रांस से, इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में। करेक्ट। और रीजन क्या था? फॉर द इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मेथड डेवलप करा जो कि जनरेट करता है एटोसेकंड पल्स को ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। तो जनरली इतने डीप में नहीं जाएंगे, बस याद रखेंगे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से किनको सम्मानित किया गया? इन तीनों को। और एना व्हीलर याद रखेंगे, ये 5th वीमेन बन गई हैं इन द हिस्ट्री जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित करा गया। Next, which of the following personalities has been awarded with the 2023 Nobel Prize in Chemistry by Royal Swedish Academy of Science? तो केमिस्ट्री में किनको सम्मानित किया गया ये पूछा गया है। तो किनको सम्मानित किया गया? वो है लुइस यूजीन ब्रॉस जो कि यूएसए से हैं एंड एलेक्सी इवानोविच एकिमोव जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। इन दोनों को यहाँ पे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया। एंड किस लिए सम्मानित किया गया? फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। जनरली टर्म याद रखेंगे, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, इनको यहां पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से। नेक्स्ट, फिर पूछा जा रहा है कि किनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया? तो वो है जॉन ओलेफ फॉसे, ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं एंड ये 4th नॉर्वेनियन राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से यहां पर सम्मानित करा गया। अगर आपको याद हो तो एक नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से एक इंडिया का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता जो कि इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड है कि 1913 में वो पहले व्यक्ति कौन बने जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इंडिया में? वो है रविंद्रनाथ टैगोर एंड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से इनको यहां पे सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद नोबेल पीस प्राइज? तो पीस प्राइज से किनको सम्मानित किया गया है? याद रखेंगे, इरानियन वीमेन के ह्यूमन राइट्स के लिए ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रही है उनके ह्यूमन राइट्स के लिए। तो उन्हीं को यहाँ पे सम्मानित किया गया, वो है नरगिस मोहम्मदी, ये ईरान से हैं और इनको यहाँ पे ऑनर किया गया नोबेल पीस प्राइज से। ये 10 साल का टर्म में ये जेल काट रही हैं अभी रिसेंटली, 51 ईयर्स ओल्ड हैं एंड ये ईरान की जो वीमेंस हैं उनके ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ पर ये वर्क करती है और इनको यहाँ पे अभी सम्मानित किया गया नोबेल पीस प्राइज से। अभी हम देखेंगे आगे वीडियो में इनको एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया है, फिर से ये चीज रिवाइज होगी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद 2023 नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज? तो नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज से किनको सम्मानित किया गया? वो है क्लॉडिया गोल्डन, ये यूएसए से बिलोंग करती हैं और इनको यहाँ पे अभी सम्मानित किया गया है नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज से। और याद रखेंगे ये 55th रेसिपिटेंट है ऑफ दिस अवार्ड और तीसरी वीमेन है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। Next, which of the following are correct with respect to 360 One Wealth Huron India Rich List released in October? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। ए ऑप्शन कह रहा है मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, इन्होंने टॉप किया 361 वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट को, फॉलोड बाय गौतम अडानी, चेयरमैन ऑफ द अडानी ग्रुप। राधा वेम्बू जो कि प्रोडक्ट मैनेजर हैं जोहो की, हैज ओवरटेकन फाल्गुनी नैयर ऑफ नाइका टू बिकम द रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वीमेन विद अ नेट वर्थ ऑफ 36,000 करोड़ रुपीस, बिल्कुल सही। और तीसरा है मनीष केजरीवाल ऑफ केदारा कैपिटल, ये वो फर्स्ट इंडियन प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर बन गए हैं ऑन द लिस्ट विद 3,000 करोड़ रुपीस ऑफ नेटवर्थ। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाते हैं। नेक्स्ट, इन अक्टूबर जनरल मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनके द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जिसको हम निशान के नाम से भी जानते हैं, इससे सम्मानित किया गया किसको? 3rd बटालियन ऑफ द डैश रेजिमेंट। तो कौन सा किनको सम्मानित किया गया? 3rd बटालियन ऑफ द नागा रेजिमेंट को यहाँ पे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड क्या है? बेसिकली ये अवार्ड किसी बटालियन को, किसी यूनिट को, किसी नेवल शिप को, किसी हेलीकॉप्टर को या किसी एयरक्राफ्ट को दिया जाता है जो उनका एक्सीलेंस सर्विस रिकॉर्ड रहता है इन इंडिया ड्यूरिंग वॉर या ड्यूरिंग पीस टाइम। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है उससे उसको सम्मानित किया जाता है। तो वो है आपका प्रेसिडेंट्स कलर और इस बार 3rd बटालियन ऑफ द नागा रेजिमेंट को यहां पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फोर्ब्स इंडिया 100 रिच लिस्ट रिलीज इन अक्टूबर 2023? तो इसमें से देखें ऑप्शन ए बी सी, ए ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, बी गलत है। ए कह रहा है मुकेश अंबानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने टॉप किया फोर्ब्स इंडिया 100 रिचेस्ट लिस्ट को विद $92 बिलियन, फॉलोड बाय गौतम अडानी विद अ नेट वर्थ ऑफ $68 बिलियन। तो बिल्कुल सही।
सी कह रहा है निखिल कामत जो को फाउंडर है ज़रोदा के, जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये यंगेस्ट बिलियनर बने एट द एज ऑफ 37 एंड रैंक्ड 40th इन दिस पोजीशन अलॉन्ग विद हिज ब्रदर नितिन कामत जो कि 44 ईयर ओल्ड है विद अ नेटवर्थ ऑफ $5.5 बिलियन। बी ऑप्शन कह रहा है रेखन झुनझुनवाला ऑफ टाइटन कंपनी, ये इंडिया की रिचेस्ट वीमेन बनी विद अ नेटवर्थ ऑफ $24 बिलियन एंड इनकी 4th रैंक मिले। नहीं, ये रेखा झुनझुनवाला नहीं है, एक तो सबसे पहले याद रखेंगे सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल ये टाइटन कंपनी की नहीं है, ये कहाँ की है? सावित्री जिंदल ओपी जिंदल ग्रुप की, राइट। और ये इंडिया की रिचेस्ट वीमेन बनी विद अ नेटवर्थ ऑफ $24 बिलियन एंड ये 4th आती है इस लिस्ट में। तो अब ऑप्शन ए बी सी तीनों ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड विद द बेस्ट सेंट्रल बैंक अवार्ड्स 2023 फॉर बीइंग रैंक्ड A+ इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकल रिपोर्ट कार्ड 2023 की? वो है इंडिया के RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, राइट। इनकी A+ रैंकिंग आई, यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, ड्यूरिंग द 30th एनुअल वर्ल्ड बेस्ट बैंक अवार्ड सेरेमनी जो कि मोरक्को में हुई थी, उसके दौरान इनको यहाँ पे A+ कैटेगरी A+ रैंकिंग दी गई। ठीक। नेक्स्ट, नेम द एक्टर हु विल रिसीव सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में होगा। तो कौन है वो है माइकल डगलस, राइट। माइकल डगलस ये एक अमेरिकन एक्टर एंड प्रोड्यूसर है एंड इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा ड्यूरिंग द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि कहां पर होगा? गोवा में होगा। 20 से 28 नवंबर के बीच में ये हो चुका है, उसके दौरान इनको यहां पे सम्मानित किया गया। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया स्किल्स 23-24 जो भी अक्टूबर में हुई? इससे रिलेटेड देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, सी गलत है। ए कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया ये इंडिया स्किल्स 23-24 जो कि इंडिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट नेशनल स्किल कॉम्पिटिशन प्रोग्राम है, तो बिल्कुल सही। बी कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा विनर्स अनाउंस किए गए ऑफ दिस 46th वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन विच वाज हेल्ड बिटवीन 7 सितंबर से 26 नवंबर के बीच में अक्रॉस 15 कंट्रीज, तो बिल्कुल सही। सी ऑप्शन कह रहा है कि इंडिया की 5वीं पोजीशन आई विद 2 सिल्वर मेडल्स, 3 ब्रॉन्ज एंड 13 मेडेलियंस ऑफ एक्सीलेंस विद चाइनीज ताइपेई इनकी 1st पोजीशन आई, तो बिल्कुल सही है। लेकिन बस यहाँ पे चेंज कर लेंगे, इंडिया की 11वीं पोजीशन थी यहाँ पर, चाइना 1st पोजीशन पे आता है, साउथ कोरिया 2nd पोजीशन पे आता है इन दिस, और बाकी सारे ऑप्शन ठीक है आपके। नेक्स्ट, who along with Iranian women protest movement has recently been named as the winner of the Shakarov Prize for Freedom of Thoughts by Robert Metsola जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट की। कौन रहेंगी वो है जीना मासा आमिनी। ये along with Iranian women protest movement, I repeat, जीना मासा आमिनी along with Iranian women protest movement, इनको यहाँ पे शाकारोव प्राइज से सम्मानित किया गया। शाकारोव प्राइज याद रखेंगे 1988 में स्टैब्लिश किया गया था यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि जो इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप कोई ह्यूमन राइट के लिए डिफेंड कर रहा है, कि वो ह्यूमन राइट के लिए वर्क कर रहा है, राइट, तो उनको इससे सम्मानित किया जाएगा। तो जीना माशा आमिनी एज वेल एज ईरानियन वीमेन जो हमने देखा था वीमेन राइट्स के लिए फाइट कर रही हैं, उन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया विद शाकारोव प्राइज से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट फॉर एयरपोर्ट्स फॉर सितंबर, यह भी सीरियम के द्वारा रिलीज की गई और इसमें बताया गया कि वो कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट रहा फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के लिए। तो वो है केम्प गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर कर्नाटका में रहेगा ये मार्क करेंगे। एंड ये मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट रहा पिछले 3 महीने के लिए कॉन्सिक्यूटिवली, जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। तो ये है केम्प गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इवन ये इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, इतना ब्यूटीफुल इसका इंटीरियर है, आप देखेंगे इवन वर्ल्ड के जो सीईओ हैं, बिजनेस मैनेजर, वो यहाँ पर आते हैं तो इसकी बहुत सराहना करते हैं ऑन एक्स प्लेटफॉर्म जो कि फॉर्मली ट्विटर था। नेक्स्ट, नेम द विलेज ऑफ इंडिया जिसको अभी रिसेंटली फीचर किया गया इन द 3rd एडिशन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज लिस्ट बाय UNWTO। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन सी रहेगी? तो वो है ढोरडो विलेज, राइट, गुजरात की बेस्ट टूरिज्म विलेज। अगर मैं बात करूं बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के लिए, बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के लिए कौन सी विलेज रहेगी? वो है माडला विलेज, राइट, माडला विलेज, और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो दोनों अलग अलग हैं, बेस्ट टूरिज्म विलेज ढोरडो विलेज और बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के लिए माडला विलेज, राइट। और ये 3rd एडिशन था बेस्ट टूरिज्म विलेज लिस्ट का जो UNWTO के द्वारा रिलीज की गई। नेक्स्ट, विच मिलिट्री स्टेशन इन इंडिया हैज रिसेंटली बैक्ड विद द बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड? तो बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? वो है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर में। और यहीं पर आपसे मैं पूछ लूं, ये तो था बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन, अगर पूछा जाए बेस्ट
ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन कौन सा रहा? बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन रहा है आपका बीकानेर मिलिट्री स्टेशन, जो कहां पर है? राजस्थान में। करेक्ट। मूविंग ऑन, नेम द पर्सनैलिटी हु विल बी कन्फर्ड विद द हार्मनी फाउंडेशंस 19th मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस इन नवंबर 2023। तो वो हैं नोबेल पीस प्राइज से किनको सम्मानित किया गया था अभी, जो ईरानियन वीमेन के राइट्स के लिए वर्क कर रही हैं और जो अभी जेल में है? नरगिस मोहम्मदी। इनको अभी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी अभी एक सेरेमनी हुई थी, 19th एडिशन ऑफ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस की सेरेमनी 26 नवंबर को, उसके दौरान इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। Next, name the regulatory body of India that has been recently awarded with ISAR honors by UNCTAD working group on ISAR. ISAR है International Standards for Accounting and Reporting. तो किनको सम्मानित किया गया? ICAI को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को यहाँ पे सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम। ये अबू धाबी में हुई थी इन UAE। इसके दौरान यहाँ पर ICAI को सम्मानित किया गया ISAR ऑनर से। एंड ये जो 8th एडिशन था वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम का, याद रखेंगे इसकी एक थीम भी थी। थीम क्या रहेगी? इन्वेस्टिंग इन सोशल डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Next, name the personality who has been recently facilitated with 2022 Center on Legal Profession Award for Global Leadership by the Harvard Law School Center of Harvard University in USA। तो वो है इंडिया की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, राइट। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है विद द सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, वो कौन से इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनको अभी नेशनल मेडल ऑफ साइंस एंड नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय प्रेसिडेंट ऑफ USA जो बाइडेन? तो सुब्रा सुरेश, इनको सम्मानित किया गया नेशनल मेडल ऑफ साइंस से, एंड अशोक गडगिल, इनको सम्मानित किया गया नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड से। नेक्स्ट, which company has recently won Mahatma Awards 2023 for corporate social responsibility excellence in community initiative? तो वो है UST। ये आपका महात्मा अवार्ड्स किस लिए दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है कि जो वर्ल्ड की जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबली, जैसे पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, इनके खिलाफ जो वर्क कर रहा है, राइट, जो कंपनी इनके लिए वर्क कर रही है अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीलेंस कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, वो रहेगी UST। एंड ये UST कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज है इन दीज इनिशिएटिव्स एंड लोगों की हेल्प कर रही है, इसीलिए इनको महात्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीलेंस इन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑन एक्सटर्नल ऑडिटर्स फॉर 2024। तो वो रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। इनको इलेक्ट किया गया एज द वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स फॉर 2024, ठीक है। एंड इसकी अनाउंसमेंट की गई थी ड्यूरिंग 63rd सेशन ऑफ द पैनल हेल्ड एट UN हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क USA 20 से 21 नवंबर के दिन, ठीक। और ये जो पैनल था इसको चेयर किसके द्वारा किया गया था? इस्मा यातून के द्वारा इस पर्टिकुलर इवेंट को चेयर किया गया था। मूविंग ऑन, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टुक पार्ट इन द डैश एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्त्रा हिंद। इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी अभी, ऑस्त्रा हिंद। लोकेशन क्या रहेगी? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो और ये कौन सा एडिशन था इस एक्सरसाइज का? ये सेकेंड एडिशन रहेगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, ऑस्ट्रा हिंद का, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में हुई थी। यहीं पे याद रखेंगे फ्रॉम इंडियन आर्मी किसने पार्टिसिपेट किया? गोरखा राइफल्स। गोरखा राइफल्स के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट करा गया। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी लोन अप्रूव किया ऑफ डैश अमाउंट फॉर महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वो रहेगा $500 मिलियन, राइट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन का अभी एक पैकेज लोन अप्रूव करा फॉर महाराष्ट्राज मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट। जो अपकमिंग बच्चे होंगे इस सेक्टर में, जो यंग जनरेशन है, उनको यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, राइट, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि वो फ्यूचर रहेंगे, इसीलिए $500 मिलियन का ये लोन अग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट, विच वर्ड हैज बीन सेलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बाय मैरियम वेबस्टर। तो मैरियम वेबस्टर के द्वारा कौन से वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था? वो है ऑथेंटिक, राइट। ऑथेंटिक इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023।
2023 एंड ऑथेंटिक मीन्स नॉट फॉल्स और इमिटेशन, मतलब जो ट्रू टू इट्स ओन पर्सनैलिटी रहे। मूविंग ऑन, विच कंट्री हैज रिसेंटली री-इलेक्टेड एंड्री रेजोलिना एज द प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड टर्म? वो रहेगा मेडागास्कर, राइट। मेडागास्कर कंट्री ने एंड्री रेजोलिना को अभी इलेक्ट कर लिया है एज द प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड टर्म। फिर इसी के बाद स्पेनिश और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? पेड्रो सैंचेज, राइट। फिर इसी के साथ साथ बताओ एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक बैंक कौन बने हैं? अशोक वासवानी। इसी के साथ इंटर्म सीईओ, अभी वापस सीईओ कौन बन गए हैं? नॉट इंटर्म, वापस सीईओ कौन बन गए हैं? ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन। और सैम ऑल्टमैन ही आपके सीईओ ऑफ द ईयर 2023 हैं। अगर एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें तो लायनल मेसी रहेंगे, एंड अगर पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो वो रहेंगी टेलर स्विफ्ट। और ये पहली वीमेन है जो कि सेकेंड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अपॉइंट की गई है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट, विच कंट्रीज टेनिस टीम हैज रिसेंटली वन डेविस कप 2023 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया? तो डेविस कप किसके द्वारा जीता गया? इटली के द्वारा जीता गया। डेविस कप होता किसके लिए है? टेनिस के लिए है, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड इटली बिकम द 10th नेशन टू होल्ड द नंबर 1 रैंकिंग सिंस द डेविस कप नेशन रैंकिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। हु हैज रिसेंटली वन नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 अंडर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो किन्होंने जीता? वो है, देखो ये अवार्ड भी 3-4 हैं। एक तो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये जीता है डॉक्टर कमाची मुदाली उथांडी जी के द्वारा, राइट, कमाची मुदाली उथांडी के द्वारा। फिर अगर मैं बात करूं नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड, ये किनके द्वारा? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। अवार्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयरन एंड स्टील सेक्टर, ये किसके द्वारा जीता गया? डॉक्टर रामेश्वर शाह के द्वारा, राइट, मार्क करके चलेंगे। और एक यंग मेटलर्जिस्ट अवार्ड है, ये भी याद रखेंगे, डॉक्टर निलॉय कुंडू के द्वारा इसको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, क्रिकेटर मेघन मौर्या मोयरा लेनिंग, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं? जैसा नाम है क्रिकेटर, किस टीम के लिए खेलती हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया की ये कैप्टन थी, फॉर्मर कैप्टन, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया एट द एज ऑफ 31। फिर इसी के साथ साथ सी बकथॉर्न, ये प्रोडक्ट है जिसको अभी जीआई टैग मिला, 4th प्रोडक्ट रहेगा फ्रॉम लद्दाख जिसको अभी जीआई टैग मिला, ठीक है। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है डैश एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण बिटवीन इंडिया एंड नेपाल बिगैन एट पिथौरागढ़ उत्तराखंड इन नवंबर। तो कौन सा एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का? तो 17वां एडिशन रहेगा ये इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है सूर्य किरण, राइट। सूर्य किरण किसके बीच में हुई थी? इंडिया एंड नेपाल के बीच में हुई। लोकेशन क्या रहेगी? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज हुई थी, 17वां एडिशन। 16वां एडिशन का हुआ था, 16th एडिशन इसका नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट, इंडिया बिकेम द चेयर ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया चेयर बन गया है 2024 के लिए, मार्क करके चलेंगे। ये अनाउंसमेंट की गई ड्यूरिंग द 63rd काउंसिल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लंदन में हुई थी, लंदन यूके में, ठीक है। एज अ चेयर ऑफ आईएसओ इंडिया लीड करेगा ग्लोबल शुगर सेक्टर को। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली, जरा बताओ, नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली वन 2023 बुकर प्राइज फॉर द नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग। तो वो है पॉल लिंच, ये आयरिश ऑथर है, राइट, आयरिश पोएट है, और इनको 2023 के बुकर प्राइज से सम्मानित करा गया, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। और इनकी नॉवल का नाम क्या रहेगा? प्रॉफिट सॉन्ग। इनको 50,000 पाउंड स्टर्लिंग से भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए, अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर कितनी अमाउंट की पेनल्टी इंपोज करी थी? तो 90.92 लाख रुपीस की यहाँ पे पेनल्टी इंपोज की गई थी एक्सिस बैंक के ऊपर, राइट। फिर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात की गई इंडिया के द्वारा बाय 2027, एंड इंडिया ने अभी रिसेंटली $4 ट्रिलियन जीडीपी का मार्क भी टच करा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.